हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल। होप आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी बच्चों। सो वेलकम टू लर्निंग बायोलॉजी। हेयर ओनली यू कैन थिंक, बायो कैन बी ईजी। सो बच्चों, बहुत टाइम के बाद मैं आज 10th की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट इज़ वाई ये इतना पेंडिंग हो गया है टाइम को। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो थ्रू माई वीडियोज़। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 8 से रिलेटेड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बहुत सारे एमसीक्यूज़ वहाँ डाल रखे हैं। सो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके चेक करिए। और जहाँ तक समझने की बारी है, जैसे चैप्टर नंबर 8, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वेरी इजी टेक्निक टू लर्न रिप्रोडक्शन। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। आपको सारी प्रॉब्लम्स एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके क्लास 10th। So what is reproduction? Reproduction is a process by which living organisms are able to produce young ones of their own kind. Reproduction की बहुत सारी definitions हैं given. So is a process by which, ये बहुत ही easy definition है related to reproduction बच्चों। Reproduction is a process by which living organisms are able to produce young ones of their own kind. Okay, understood? So types of reproduction में हमें मालूम है, सब बच्चों को पता होगा, asexual reproduction and sexual reproduction. So first of all we are going to discuss about the asexual reproduction. Asexual reproduction involves the production of an offspring from a single parent without the fusion of gametes. Okay, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं बट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, मीन्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व्ड बट डिफरेंट सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व्ड। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली अकर इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, some plants like algae, fungi, bryophytes, etc., and certain multicellular animals like sponges and hydra. So these are some very important points related to asexual reproduction. You can click the picture or you can write, pause करके आप लोग लिख भी सकते हैं बच्चों। These are the very important notes related to chapter number 8. So in this method of reproduction, the young ones receives all its gene from one parent only. Okay, from one parent only. So these are the basic features of asexual reproduction. Only one organism is involved. Different sexes are not involved. Different sexes कहाँ involve होते हैं? Sexual reproduction में. Okay. All the cell division during this type of reproduction are either mitotic or amitotic. Okay. It's very simple, cell division होता है during this type of reproduction. Maybe it's mitotic or amitotic. New individuals produced are genetically identical to the parents. जो new individual produce हो रहे हैं, they are genetically same, identical to the parents. So these are the basic features of asexual reproduction. So next page, you can click the picture. So it is rapid mode of multiplication. It is a rapid mode of multiplication. No gametes are formed and hence no fertilization takes place. आप देख सकते हैं, it is a rapid mode of multiplication means multiplication होता है इसमें, it is a rapid mode of multiplication but no gametes are formed. Hence जब gametes नहीं होगा, without gametes no fertilization takes place. Understood? So the difference में आ जाए तो you can write these points as a difference. Asexual और sexual में आप लोग difference लिख सकते हैं. Now बच्चों, these are the modes of asexual reproduction. As you can see, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा easy तक निकाल दिया है, एक flow chart के through आपको समझ आ जाएगा। Modes of asexual reproduction कितने तरह के होते हैं? Fission, fragmentation, regeneration, budding, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? अब फिशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू, बाइनरी फिजन एज वेल एज मल्टीपल फिजन।
समझ आ रहा है आप लोगों को? इफ़ यू हैव एनी डाउट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, मैं उस पे वीडियो फिर से बनाऊंगी, डोंट वरी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना बेटा। ये चैप्टर आपके फाइनल्स में आने वाला है, सो आप लोगों को अगर एक एक एग्जाम्पल नहीं समझ आया तो यू राइट इन योर एग्जाम्स। अब तो एमसीक्यूज थोड़े से ही आएंगे, मे बी सब्जेक्टिव ही आने वाला है पूरा पेपर, सो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ पे अटेंशन बच्चों। फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, व्हाट इज बाइनरी फिजन? दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू स्मॉल और इक्वल साइज आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिलती हैं हमको, फिर वो कहाँ जाके डेवलप हो जाती हैं? एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट, लिशमेनिया एंड यूग्लिना। क्लियर? इसके एग्जाम्पल हैं, समझ आया? नेक्स्ट मल्टीपल फिजन क्या होता है? इट इज अनदर टाइप ऑफ फिजन इन विच मैनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. It is called multiple fission. The unicellular develops a protective covering called cyst over the cell. पेरेंट सेल पे एक कवरिंग होती है that is called cyst. जब वो ब्रेक होती है, that covering will break and it gives so many daughter nuclei. छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई ऑफस्प्रिंग्स लिबरेट होते हैं जब वो सिस्ट ब्रेक होती है बच्चों. ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन, कहाँ पे दिखती है हमको? प्लास्मोडियम, अमीबा. ओके, दीज आर सम एग्जाम्पल्स. आई हैव रिटन ओनली द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट यू विल लर्न द एग्जाम्पल, देन यू विल राइट ईजिली. अगर आपको नहीं पता होगा कि बाइनरी फिजन में आपने प्लास्मोडियम लिख दिया तो वो तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट है टाइप हमारा फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ब्रेक होता है. अगर कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, उसकी एक सिंपल बॉडी जब रिप्रोड्यूस करती है तो बाय ब्रेकिंग देयर बॉडीज इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में वहाँ से डिवाइड हो जाती है पेरेंट सेल फ्रेगमेंट्स में, और फिर फ्रेगमेंट्स डिवाइड होती हैं अलग अलग न्यू इंडिविजुअल में. सो दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल and the mode of reproduction is called fragmentation. Example Spirogyra. ठीक, आपकी बुक में भी स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल है. ओके, सो द नेक्स्ट इज, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड इज रीजनरेशन. रीजनरेशन, व्हाट इज रीजनरेशन बच्चों? बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैन भी कट हो जाते हैं इनटू एनी, मतलब नंबर ऑफ पीसेस में कट हो जाते हैं, और वहीं से वो ग्रो हो जाते हैं. आपने लिजार्ड का एग्जाम्पल सुना होगा कि लिजार्ड अपनी पूंछ को कट, अगर उसकी गलती से पूंछ कट हो जाए, उसकी टेल कट हो जाए, तो वो वहीं से रीजनरेट कर लेती है. उसकी पूंछ, उसकी जो टेल है वो दोबारा से डेवलप हो जाती है. हाउ? बिकॉज रीजनरेशन, बिकॉज ऑफ रीजनरेशन. सो इसमें दो एग्जाम्पल और हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. सो ये प्लेनेरिया क्या है बच्चों? फ्लैट वॉर्म. ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट वॉर्म. फोर्थ पॉइंट इज बडिंग. फोर्थ पॉइंट इज बडिंग. बडिंग क्या होता है? व्हाट इज बडिंग? बडिंग मतलब इट इज़ मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउट ग्रोथ ऑफ ए पेरेंट इंडिविजुअल. मतलब कि बडिंग अकर हो जाती है एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ आउट ग्रोथ. आपने एक डायग्राम देखा होगा, ऐसे ऐसे करके आपकी बुक में ऐसे ऐसे करके ये बर्ड्स निकलती हैं, तो दिस इज कॉल्ड बडिंग. इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ई. आपकी बुक में भी है बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग इन ईस्ट. ओके, सो दिस इज बडिंग, फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? एक स्पोर मतलब कि अ स्पोर इज अ सिंगल और several celled reproductive structure that detaches from the parent and give rise to directly or indirectly to a new individual. Means आपकी बुक में जो डायग्राम है, spores formation in rhizopus, bread mold वाला. So this is spore formation. ये ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ फंगस, राइजोपस, स्मॉल राउंडेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, ऐसे 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 छोटे 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 छोटे. ठीक है,
वो ना डेवलप कर जाते हैं एट द टॉप ऑफ द हाइफे, तो उसकी स्ट्रक्चर को बोला गया है स्पोरेंजिया। अगर कोई ब्रेड पे फंगस लग जाती है येलो और ग्रीनिश कलर की, तो उस पर क्या, बिकॉज ऑफ व्हाट, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, एग्जाम्पल इसलिए मैंने ब्रेड मोल्ड लिखा हुआ है। नाउ द सिक्स्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। क्लियर? नेचुरल मेथड भी 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, बाय स्टेम, बाय लीव्स एंड बाय रूट्स। बाय स्टेम में एग्जाम्पल है पोटैटो, जिंजर, अनियन। बाय लीव्स में आपकी बुक में ब्रायोफाइलम एंड कैलेंचो। बाय रूट्स में स्वीट पोटैटो। क्लियर? बाय स्टेम में आप देखेंगे पोटैटो है, बच्चे हमेशा गलत लिख देते हैं एग्जाम्पल में, पोटैटो नहीं लिखते स्टेम में। ओके, आर्टिफिशियल मेथड में देयर आर 4: कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। कटिंग, हम किसी भी स्टेम की कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में रोज, कैक्टस एंड शुगर केन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंगो, एप्पल एंड लेमन, ऑरेंज फैमिली। ग्राफ्टिंग क्या मेथड होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ सुपीरियर क्वालिटी प्लांट फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लांट्स बाय टेकिंग द रूट सिस्टम ऑफ वन प्लांट एंड द शूट सिस्टम ऑफ द अनदर प्लांट। अगर हम उस प्लांट का रूट ले रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड स्टॉक। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग रूट ले रहे हैं तो स्टॉक, और अगर शूट ले रहे हैं तो शियोन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हम लोगों को इसमें हमें अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स लेने हैं, जिसमें से कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होंगे, जो कि रूट सिस्टम अगर हम लोग लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक, और अगर हम लोग शूट ले रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड शियोन। Thus, the plants grafting is a method which cuts stems of 2 plants, stalk and shion. वो दोनों ज्वाइंट कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे टेप के थ्रू हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, एंड देन दे डेवलप इनटू अ सिंगल प्लांट। ठीक, समझ आया? नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया जैस्मिन एंड हिबिस्कस। इसमें जो होते हैं, द रूट्स आर आर्टिफिशियली induced on the stem branches before they are detached from the parent plant for propagation. So examples are jasmine and hibiscus. Next is tissue culture. This technique is a modern technique of vegetative propagation. This technique is also called micro propagation. आपको अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चों माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, सो यू कैन राइट टिश्यू कल्चर का आपको उसमें लिखना है। ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू इज कट फ्रॉम अ प्लांट एंड इज ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम इन अ कंटेनर। उसमें एक न्यूट्रिएंट मीडियम रख देते हैं, अंडर उनकी जो कंडीशंस होती हैं एसेप्टिक कंडीशन, फ्री मतलब कि जो फ्री ऑफ माइक्रोब्स। सो वहाँ रख के उसको मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है इन अ परफेक्ट मैनर। Okay, so that process, some portion of the callus is separated and transferred to another medium. वहाँ पर ये टेक्निक एम्प्लॉयड की जाती है फॉर क्विक मल्टीप्लिकेशन। क्विक मल्टीप्लिकेशन चाहिए प्लांट्स का, जैसे कि ऑर्किड्स हो गया, और एक और एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ एस्पैरेगस, ये भी एक एग्जाम्पल है टिश्यू कल्चर का। सो आई होप आपको मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आए होंगे बच्चों। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इस पर डिटेल वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए समझाया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। रीजनरेशन वाले एग्जाम्पल्स फ्रेगमेंटेशन में कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। सो मुझे लगा मुझे ये फ्लो चार्ट से आप लोगों को समझाना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून। सो जब तक के लिए जल्दी से इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।